Hello students, how are you? We are continuing with the discussion of preparation of cash flow statement. As I told you in the last lesson that there are three things which need to be worked out. One is cash flow from operating activities. The other is cash flow from investing activities, and the third one is cash flow from financing activities. So we are discussing right now the flow of cash or cash flow from operating activities. I discussed in detail the composition of cash flow from operating activities. What items will be taken in cash flow from operating activities. And I told you that the best cash flow for a business is the one which comes from profits. So in operating activities, in cash flow from operating activities, the best and maximum cash flow which will be coming will be from the net profits earned during that year for which we are preparing the cash flow statement. And to start with, we will be calculating the net profit earned by the company for the year in for which the cash flow statement is prepared. And mind you, this net profit will be before tax, it will be before extraordinary items, and also before appropriations. Means it will be before paying or making provision for tax. We want profit, operating profit, before the company decides to make a provision for tax. Which one will be the bigger figure, after tax or before tax? Yes, before tax. We want that figure which is before tax. So if we are given the profit after tax, we will convert it into before tax. And profit before tax will be definitely before appropriations. पहले टैक्स देना होगा, उसके बाद आप जनरल रिजर्व बना सकते हैं और कोई रिजर्व बना सकते हैं. पहले टैक्स, नहीं तो कोई सारा प्रॉफिट जनरल रिजर्व बना के भेजे और गवर्नमेंट को कह दे कोई टैक्स नहीं देना. So we will calculate profit before tax, and also we will not include in this extraordinary items. If the given profit includes an extraordinary income, it will be deducted. इसको काट देंगे हम. If it includes an extraordinary expense which has reduced our profit, इसको हम ऐड कर देंगे और वो हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स. सिमिलरली, if a general reserve has been created or any other reserve has been created, add it back, उसे ऐड कर दीजिए, and then we can have that profit. So in order to explain the whole thing, all these things were discussed in the last lesson. Now I am going to explain the same things which I already discussed, and today also I have given you some brief introduction. So I am going to explain this to you with the help of an example, an illustration, a comprehensive illustration I have taken for you. Please note it down. Please read it carefully. See what is asked
and give answer only what is asked, nothing extra, nothing less, nothing more. And here is that question. Let us study this thoroughly. What is this question? And also, my dear students, I told you that the examiners may ask you only this question: calculate cash inflow or outflow, cash flow from operating activities only. This may be 3 marks or 4 marks question. So you prepare it as it is. Think that it is a question in the board examination carrying 3 to 4 marks. So these questions are of 2 types. One type I am taking today. Second type will be taken up in the next lesson. So the 2 types have to be thoroughly prepared by you, and then you can tell yourself, yes, I know this and I can solve this. This I can assure you. Now here it is. Here is the question that I have got with me. Just see, this is type 1 question. Type 1 says, the comprehensive problem I have taken, find out cash flow from operation for the year 2015. The cash flow from the operation means operating activities. So these are the 11, 12, 13 items given to you for your information. And these are the 2 columns, one for the current year, the other for the previous year. So what is this? Net profit after tax. Please mind this. This is given after tax. This profit is after tax. So what is this profit? This is last year's after tax. This is this year after tax. This is closing stock. This is the debtors, last year's, current year. Debtors, last year, current year. Creditors, last year, current year. Bills payables, previous year, current year. Commission received in advance. You see, commission received in advance. This is a current liability. This is a current liability. Here it is, stock is a current asset, debtors a current asset, creditors current liability, bills payable current liability. This item is a new one and it is a current liability. Prepaid rent is a current asset last year, this year. Now general reserve, last year it was how much? 1 lakh, now it is 250. Tax provision, last year it was 40,000, this year it is 85,000. Proposed dividend 80,000 and this is 95,000. Depreciation, last year it was this much, this year it is this. Goodwill 50,000 and 15,000. Patents 30,000 and nil. These 13 items are given. In the examination, the examiners don't give 13, they give only 8 or 9 items. But this is a comprehensive problem and I have taken all possible items here. Some items still have been left that I will tell you during the course of my lecture explanation to you. Okay. Now there is some additional information. This information is in addition to this, which has to be taken into account when we find out this. What is this? One is there is a lottery income of 40,000. भाई 2015 में एक लॉटरी निकल आई थी 40,000 की, and that lottery income has been included in this because this is a profit given to you after tax. लॉटरी निकली होगी तो इसमें जरूर आ गई होगी वो. And then we have second item is 2, A and B. There is a gain on sale of machine. There are 2 sales. One is sale of machine, the other is sale of investment. 2 non-current assets have been sold. 2 non-current assets have been sold. One is machine, the other is investments. There is a gain in one, there is a loss in one. Now this is, first one is, there is a gain. This gain is included in this, and therefore similarly this loss also is deducted out of this. This is the profit after taking into account these 2 items. Then there is number 3 says interest of rupees 21,000
हैज़ बीन पेड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल में हमने इंटरेस्ट भी दे दिया और इंटरेस्ट हैज़ बीन डिडक्टेड आउट ऑफ दिस, आफ्टर इंटरेस्ट होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डिविडेंड पेड ऑफ ₹80,000, हमने 2015 में 80,000 का डिविडेंड दिया एंड लास्टली टैक्स पेड इज 40,000, कि सारे साल में 40,000 का टैक्स दिया। सो दिस इज दिस क्वेश्चन वंस अगेन आई एक्सप्लेन टू यू, दिस इज द करंट ईयर प्रॉफिट, दिस इज प्रीवियस ईयर्स प्रॉफिट, स्टॉक, डेटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एंड प्रीपेड रेंट, ये सारी आइटम्स यहाँ से लेकर यहाँ तक ये करंट असेट्स हैं और करंट लायबिलिटीज हैं, देख लो सारी। इसके बाद 3 आइटम्स मैंने लिए हैं, ये है जनरल रिजर्व, टैक्स प्रोविजन, प्रपोज डिविडेंड, ये है एप्रोप्रिएशंस, ये पैसा एप्रोप्रिएट किया है, जनरल रिजर्व में रख लिया, थोड़ा टैक्स देने के लिए रख लिया, थोड़ा डिविडेंड देने के लिए रख लिया। अच्छा, इसमें देखिए जनरल रिजर्व लास्ट ईयर कितना था, 1 लाख, अब हो गया 250, दैट मीन्स इस साल हमने कितने का जनरल रिजर्व बनाया, इस साल का जनरल रिजर्व 1,50,000 का, तो 1,50,000 रुपया हमने प्रॉफिट में से निकाल लिया। कितना निकाल लिया, 1,50,000 रुपया। तो ये प्रॉफिट जो हमें गिवन है ये 1,50,000 निकालने के बाद है। 1 लाख, इसका मतलब प्रॉफिट हमारा 4 लाख ये नहीं है, ये तो रिजर्व रखने के बाद हो गया। इसी तरह से हमारे पास ये प्रोविजन फॉर टैक्स है, इसमें से टैक्स की प्रोविजन भी बन चुकी है, बिकॉज दिस इज आफ्टर। कौन सा ज्यादा होता है, आफ्टर और बिफोर? बिफोर ज्यादा होता है, तो आफ्टर वाला कम है। ये कम क्यों हो गया? क्योंकि इसमें से रिजर्व निकल गया, इसमें से प्रपोज डिविडेंड निकल गया, इसमें से प्रोविजन फॉर टैक्स मिल गया हमारे पास। और उसके बाद ये लास्ट 3 आइटम जो हैं, ये देखिए डेप्रिसिएशन, लास्ट ईयर 40,000, इस बार 55,000, 15,000 की डेप्रिसिएशन इस साल लग गई। कितने की? 15,000 की। ऐसे सोचना अपने क्वेश्चन कर को, रीड इट केयरफुली, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग। 15,000 की डेप्रिसिएशन लगी। गुडविल पीछे थी हमारे पास 50,000 की, अब कितनी रह गई? 15,000 की। दैट मीन 35,000 की गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। हमने प्रॉफिट घटा दिया, डेप्रिसिएशन भी इसमें से घटा दी, इसमें से डेप्रिसिएशन भी घटा दी, इसमें से हमने अपनी गुडविल जो राइट ऑफ किया वो भी घटा दी। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, लास्ट ऑफ ऑल वी हैड पेटेंट्स ऑफ 30,000, और इस साल कुछ भी नहीं है। क्या हुआ? हमने राइट ऑफ कर दिए, सारे पेटेंट्स जो है ना उनको राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ करने से हमारा ये प्रॉफिट और कम हो गया। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ दीज। इन तीनों का इफेक्ट है कि हमारा प्रॉफिट 15,000 की डेप्रिसिएशन से कम हो गया, हमारा प्रॉफिट 35,000 की गुडविल से कम हो गया, हमारा प्रॉफिट 30,000 की पेटेंट से कम हो गया। वी वांट टू नो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड एप्रोप्रिएशंस। तो हमें वो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है जो कि बिफोर टैक्स हो, बिफोर एप्रोप्रिएशंस हो और बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम हो। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है 40,000 की, ये भी इसमें मिली हुई है, हमें ये इसमें से निकालनी है। ओके, नाउ लेट अस प्रोसीड कि करना कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है। सो वी स्टार्ट विद कि पहले हमने एक वर्किंग नोट बनाना है, इधर सेपरेटली हेडिंग देंगे वर्किंग नोट। ये है वर्किंग नोट, किस लिए? फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट
बिफोर टैक्स, जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा वो बिफोर एप्रोप्रिएशन अपने आप ही होगा, विदाउट। सो दिस इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है? वी विल स्टार्ट विद फाइंडिंग आउट व्हाट इज द प्रॉफिट फॉर, प्रॉफिट फॉर 2015 का प्रॉफिट कितना है, कैसे निकालेंगे? ये है हमारे पास प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 470, पिछला 250, सो दिस इज 470, ये है 2015 का, इसमें से 2014 का जो है 2,50,000 ये लेस कर दो, पिछले साल का लेस कर दो, ये 2014 का है। तो अब हमारे पास ये प्रॉफिट आ गया 220,000। दिस इज प्रॉफिट फॉर 20, ये है, लेकिन ये प्रॉफिट है। सो दिस इज द वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट बिफोर टैक्स। वी हैव टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। Okay, now for this purpose first we find out profit for 2015. This is the profit before, this is the profit for 2015, this is after tax, this is after tax, but it is to be converted into before tax. What shall we do? We will add to this, we will add tax provision. ध्यान रहे ये टैक्स प्रोविजन ऐड करनी है इधर। हाउ मच इज द टैक्स प्रोविजन? इधर देखिए, सी हियर, टैक्स प्रोविजन इज लास्ट ईयर 40,000, दिस ईयर 85,000. टैक्स प्रोविजन इज लास्ट ईयर 40,000, दिस ईयर 85,000. इसका क्या मतलब है? लास्ट ईयर की जो टैक्स प्रोविजन हमने करी थी 40,000 की, किस लिए की थी? कि हम इस साल इतना टैक्स देंगे। टैक्स कितना पे किया? इधर देखिए, टैक्स कितना पे किया? इधर टैक्स पेड इज 40,000. इसका मतलब ये हुआ जितनी लास्ट ईयर प्रोविजन बनाई थी वो हमने टैक्स दे दिया। That tax has been paid during this year. और इस साल हमने प्रोविजन बनाई है, अगले साल उसको पे करेंगे। वो कितनी है? वो है 85,000. तो यहाँ पर हमने इस फिगर को बिफोर टैक्स बनाने के लिए इसमें हमको 85,000 ऐड कर देना है। 85,000 ये प्रोविजन है इसमें। इसी तरह से दूसरा है प्रपोज्ड डिविडेंड। देखो इधर, प्रपोज्ड डिविडेंड, लास्ट ईयर हमने प्रपोज किया था शेयर होल्डर्स आपको 80,000 डिविडेंड देंगे, और इस साल हमने प्रपोज किया है 95,000 देंगे। When we propose to the shareholders that we will pay you 80,000, इसका मतलब है इस साल 80,000 डिविडेंड पे कर दिया हमने। उनको कहा था हम आपको 80,000 देंगे, तो जब कह दिया है तो आज दे देंगे, इस साल हम दे देंगे। तो इस साल वी हैव पेड हाउ मच डिविडेंड? 80,000. इधर भी लिखा हुआ है डिविडेंड पेड 80,000. ये कौन सा है? जो पिछले साल, ऑलवेज पिछले साल की टैक्स प्रोविजन इस साल टैक्स पे होगी, और पिछले साल का प्रपोज डिविडेंड इस साल दिया जाएगा। ये सीधा सा सिंपल रूल है। थोड़ी सी इसमें एडजस्टमेंट आती है, वो बाद में आपको बता देंगे हम। पहले तो ये है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो लास्ट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स इस साल पेड हो जाएगी अपने आप। इधर तो लिख दिया हमने टैक्स पेड, नहीं भी लिखा हुआ, आप सुन रहे हैं ना सब? अगर नहीं भी लिखा हुआ है तो लास्ट ईयर की टैक्स प्रोविजन इस साल अपने आप टैक्स पेड मान लो। और सिमिलरली लास्ट ईयर का प्रपोज डिविडेंड अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो पेड माना जाएगा, क्योंकि अगर हम शेयर होल्डर्स को प्रॉमिस करते हैं तो देना ही पड़ेगा, वो तो देना है हमने।
सो ये इनका रूल है और जो ही हमने लिया है, और ये दो बातें हमने लिख भी दी। ये चौथा पांचवा पॉइंट अगर ना भी लिखा हुआ होता तो भी हमने पिछले साल का ये पे कर देना था और ये टैक्स पे कर देना था हमने। इज दैट क्लियर? सो देयरफॉर हमने यहाँ पर प्रपोज्ड डिविडेंड लिखना है, पेड नहीं लिखना, प्रपोज्ड डिविडेंड, दैट इज हाउ मच? इट इज 95,000। और तीसरी आइटम है यहाँ पर जनरल रिजर्व, हमने एप्रोप्रिएशन बनाई है। जनरल रिजर्व को पैसा ट्रांसफर कर दिया, अपना प्रॉफिट घटा के रख लिया। ये प्रॉफिट ज़्यादा था, कितना ज़्यादा था? इसमें ये फिगर जुड़ी हुई थी, टैक्स के लिए निकाल ली। इसमें ये फिगर जुड़ी हुई थी, डिविडेंड के लिए निकाल ली। इसमें जनरल रिजर्व जुड़ा हुआ था, कितना? 1,50,000। देखो कितनी बड़ी फिगर है, 1,50,000 का जनरल रिजर्व बना लिया हमने। तो ये तीन आइटम जो हैं इसमें से कट चुकी हैं, और एक और आइटम जो है वो हमें इसमें इंक्लूड करी हुई है, लेकिन वो हमें इसमें से निकाल देनी है। वो है लॉटरी की इनकम। लॉटरी की इनकम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम है, जो हर साल नहीं होती। इसलिए इसमें हम ये तो ऐड करेंगे तीनों, ये तीन जो हैं इनका टोटल करके देख लो कितना बनता है। दिस कम्स टू 3,30,000 आई थिंक। चेकअप, यस 3,30,000 इसमें ऐड कर दो। ये बन गया 5,50,000। और इसमें भाई एक चीज लेस भी करो, लेस लॉटरी इनकम। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, याद रखना है इसको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कितने की लॉटरी थी? 40,000 की। ये है हमारे पास 40,000 की लॉटरी इनकम, और इनमें से इसमें घटा दें